Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th economics chapter number 1 economic and introduction. So as you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 3 of the chapter. So students, let us move on with the line-to-line explanation of the portion from the textbook in the further video. But before moving to that portion, let us have a short revision of the portion that we have seen on the previous video. So previously what we have seen? Previously we have seen that economics in Indian portion how it is seen, which means in Indian thought how the economic is been seen up. In that we have seen up that before 5000 years ago only the Indian economics was being studied up in the Indian culture. In that a way of living a life, which means the standard of life has been explained in the 4 Purushastra, in which we have seen the earth, moksha, kama and the other one which is considered as the dharma, which is we are considering as responsibility. So which is considered in English as responsibility, wealth or purpose to live. Then kama means desire and the moksha means liberalization. So in that only we have seen from the ancient time people believed that wealth is a needed thing to live the life. In this manner, we have seen the Indian thought. After that, we have seen 2500 years ago, Kautilya Chanakya, who was known as Chanakya also. He has written a book which name is Arthashastra. In Arthashastra, he has been said up that each human being needs the material well-being or wealth to live in the world. So for that, they seek the benefit, which is considered as the material utilization, which means how to utilize the wealth in their life is considered as the economic activity. Even this thing is done by each and every state and country also in the world. So each and every individual needs this portion in a very, we can say that, important factor. So in this manner we have seen the Indian thought. After that we have seen the development of economic in the West. What was the development of economic in West? The famous economics from Greek named Aristotle has written a book which name is Economics. In that he has seen that economic is not only a thing that is done by each and every individual, but it is also a science. How it is considered as a science? Then he has written in his book that each and every human being try to do something better in his life, for which he needs the specialized skill and laboralization, which is considered as division of labor, and the skill efficiency of each and every individual is different. That was considered in that portion. Even after that we have seen that the physical science, social science, each and everything were being considered in the economic portion, and slowly in economic reforms or after economic reforms this all things has been seen up, in which we have seen the mass production or a huge production in a very detailed manner. After that we have seen 2 definitions, one of the Adam Smith, second one of the Alfred Marshall. In Adam Smith definition we have seen that economic is considered as a social science, even an independent science also, because it does not connect with the general philosophy. How it is considered as a social science? Then it is connecting with the human activity. On the other side, the efforts of the science are needed for the methodologies to do the production. That's why it is considered as a social science. After that we have seen the Alfred Marshall's definition. In that we have seen that it is an material consumption or material well-being of human being. By in his book also Alfred Marshall mentioned that each and every human being is trying to do some material well-being. For that purpose only they are always doing the economic activity. So here the concept is very narrow, by which we can say that
The material well-being is been seen in a very detailed portion. That's why the economic is considered as an material well-being or a materialistic concept, which is a narrow concept according to the Alfred Marshall. So up till this we have seen in a very detailed manner. So today we are going to continue with the further portion. So students, without wasting the time, let us move on with the line-to-line explanation of the portion that we have to see in the today's lecture. So students, now let us move on with the today's portion. So today we are going to see the definition of economics by Lionel Robbins. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. Any field of science deals with the problem of questions, and economics deals with the question how to allocate limited resources which have alternatives used in the satisfaction of recurring and unlimited human wants in order to increase the well-being in a society. Hence, in 1931, Lionel Robbins, in his book Nature and Significations of Economics, gave the following definition. Economic is the science which human studies behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. So here if you are seeing what is the Lionel Robbins definition, कोई भी फील्ड में साइंस में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, और इवन इकोनॉमिक्स में दोनों में ये क्वेश्चन देखा जाता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाए, उसके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसे सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं हमें रिकरिंग और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की ज़रूरत रहती है. इवन ह्यूमन वांट्स जो होता है इस ऑर्डर में देखे जाता है कि वेलबींग ऑफ सोसाइटी पे उसको इंक्रीज किया जाए. In short, if you are discussing in science and economics, there is a major question that how to allocate the limited resources. हमारे पास जो resources होते हैं वो already बहुत कम होते हैं, उस resources को कैसे हम allocate करें, ये सबसे बड़ा question देखा जाता है. Even satisfaction यानी उससे satisfaction कैसे आया जाए, ये question भी सबसे बड़ा question के रूप में देखा जाता है. But 1931 में लायनल रॉबिन्स ने एक बुक लिखा था जिसका नेम था नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक. उन्होंने उसमें एक डेफिनेशन दिया, इकोनॉमिक एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ता है. इवन जो हमारा एंड और स्कैर्स है यानी हमें क्या चाहिए वो चूज करना, और उसमें जो स्कैरसिटी है, ये दोनों का अल्टरनेटिव यूज के बारे में कहीं ना कहीं वो हमें समझाता है. इन शॉर्ट लायनल रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स का मतलब जो हम एंड करते हैं यानी मुझे यही चाहिए ऐसा एक प्रोसीजर, और उसमें हमें जो अल्टरनेटिव यूज करके जो स्कैरसिटी को ओवरकम करने का जो सिचुएशन देखा जाता है उसे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स माना जाता है अकॉर्डिंग टू लायनल रॉबिन्स. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्स. Human wants are unlimited and most wants keep on recurring. On the other hand, resources which helps in satisfying human wants are limited and have alternate uses. Hence, economic must deal up with the problem of allocation of scarce resources in the satisfaction of human wants to the maximum possible extent. अब लोगों की, इंसानों की वॉन्ट्स, ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती. यू नो दैट. आज तुम्हें 5 स्टार की एक चॉकलेट चाहिए, कल तुम्हें दोबारा चाहिए, परसों दोबारा चाहिए, तो ये कभी ख़त्म नहीं होता. हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड होता है. हमने एक घर खरीदा, फिर हम दूसरा घर की सोचते, गाड़ी खरीदा, दूसरा गाड़ी की सोचते. इस तरीके से हमारे वॉन्ट्स बढ़ता ही जाता है. रिकरिंग मीन्स अगेन एंड अगेन इट इज़ अकरिंग. और दूसरा तरीके से ऑन अदर हैंड इफ़ यू आर टॉकिंग, रिसोर्सेज जो होते हैं हमें सेटिस्फाई करने वाले वो बहुत कम होते हैं. जैसे हमें चॉकलेट्स तो 10 चाहिए बट दुकान में 5 ही है. तो इस तरीके के ह्यूमन के वांट्स लिमिटेड है, जबकि ह्यूमन्स के अल्टरनेटिव वांट्स को हमें देखना पड़ता है. अल्टरनेटिव वुड्स अगर सेटिस्फाई करने के जो तरीके हैं वो अगर लिमिटेड है तो उसको कैसे दूसरी तरीके से सेटिस्फाई किया जाता है, उसके कहीं ना कहीं अल्टरनेट यूसेज का हमें ध्यान देना पड़ता है. जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा टी पीते, चाय पीते, ठीक है, अगर चाय कम आया है तो उस टाइम पे हम कॉफ़ी में स्विच ऑफ होते. तो इस तरीके से हमारे वांट्स अगर अनलिमिटेड है तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे अल्टरनेटिव यूज देखना, ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स स्टडी अप करता है. इकोनॉमिक्स ज़्यादातर प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन के साथ डील अप करता है, यानी जो चीज़ें कहाँ किस तरीके से एलोकेट यानी किसको कितना मिलना चाहिए,
स्कैर्स रिसोर्सेज यानी जो कम है, स्कैर का मतलब स्कैरसिटी, कम होना। तो जो रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है उसको कैसे दूसरे को अलोकेट किया जाए और कैसे उससे ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाइड किया जाए, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले, बट हमारे पास कम है रिसोर्सेज तो उसको कैसे यूज करें, इस चीज़ के बारे में ये ज़्यादातर डेवलप करता है। सो नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक इज अ पॉजिटिव साइंस एंड डज नॉट प्रिस्क्राइब हाउ थिंग्स शुड बी. It studies how human beings behave and does not deal with how they should ideally behave. Hence, economic does not deal with norms and thus it is not a normative science. रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक एक पॉजिटिव साइंस है। हमें सिर्फ एक ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हम कैसे जो चीज़ें हैं उसको पहुंचता है, बट कहाँ से, हाउ थिंग्स शुड बी, कैसे चीज़ों को होना चाहिए। अगर अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वांट्स को लिमिट करना पड़ेगा। अगर 5 चॉकलेट ही है तो 5 ही हम दे सकते हैं। ऐसे लोगों को लिमिटेड रिसोर्सेज पे जीना आना चाहिए। ये रॉबिन का साइंस हमें नहीं समझाता। इसीलिए रॉबिन ये कहते हैं अगर हमें ह्यूमन को कैसे बिहेव करना चाहिए ये देखने की जगह कि लोग कैसे बिहेव करते ये मत देखो, वो कैसे आइडियली बिहेव करने चाहिए। जैसे मैंने बोला 5 चॉकलेट ही है तो 5 ही चॉकलेट मिलेगा, तो आपकी नीड्स को कम करो, ये सिखाना हमें होने चाहिए, ना कि उनके नीड्स ज़्यादा है ये हमें देखना चाहिए। इस तरीके से जो इकोनॉमिक है वो नॉर्म्स के साथ, यानी डज नॉट डील्स विथ नॉर्म, यानी कैसे नॉर्मली उसको चलना चाहिए, कैसे उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, उसके बारे में कोई डीलअप नहीं देता है। इसीलिए ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव साइंस के रूप में काम करता है। सो दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्स लेयर. So let us move on with the Paul Samuelson's definition. I am going to read it out, listen it out carefully. In his book Foundation of Economic Analysis, published in 1947, Samuelson defines economic is the study of how people and society end up choosing, with or without the use of money, to employ scarce productive resources that could have alternative use to produce various commodities over time and distributing them for consumption now or in the future. Among various persons in the society, it analyzes cost and benefit of improving pattern of resources allocation. Hence, Samuelson talks about choice, allocations of scarce resources and evaluations of cost and benefits of doing so. All definition in a way commonly points out the economics study human behavior is positive in nature, adopts scientific method and methodologies and thus it is a social science. पॉल सैमुएल्सन क्या कहते हैं? पॉल सैमुएल्सन अपने बुक फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जो पब्लिश किया गया था 1947 में, उसमें ये कहते हैं कि सैमुएल्सन का डिफिनेशन क्या था? इकोनॉमिक एक ऐसा स्टडी है जहां हाउ मेनी पीपल यानी कितने लोग सोसाइटी में चीज़ों चूज करते हैं, एंड अब चूजिंग का मतलब चीज़ों को चूज करते हैं, और वो मनी के साथ चूज करते हैं या विदाउट मनी चूज करते हैं, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन, बट कैसे वो चूजिंग अप के साथ एंड अप होते हैं। जैसे हम कोई दुकान में जाते हैं, हम पैसे देते हैं कि नहीं देते, बट हम चीज़ें देखते हैं, हम चूज करते हैं हमें क्या पसंद आता है क्या नहीं, तो उसमें पैसे की जरूरत नहीं लगती। जब हम खरीदते हैं तब हमें पैसे की जरूरत लगती है। इन द सेम मैनर सोसाइटी में पीपल चूजअप के साथ एंड अप करते हैं, और उसमें हमारे पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बहुत ही कम होते हैं, जिससे हमें अल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है। हमें ऐसे वेरियस प्रोडक्ट और कमोडिटीज को ओवर टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है जो कंजम्पशन के लिए हेल्प आउट करे, जो कि अभी और फ्यूचर दोनों टाइम पे करे। इसीलिए वेरियस पर्सन जो सोसाइटी के अंदर है वो एनालाइज करते हैं कॉस्ट और बेनिफिट के बारे में, और वो पैटर्न को इम्प्रूव करके देते हैं रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशंस के, यानी हमें कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए। इस तरीके से सैमुएल्सन जो है चॉइस, एलोकेशंस ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज यानी जो ऑलरेडी रिसोर्सेज कम है उसके एलोकेशंस कैसे करने चाहिए, इवैल्यूएशंस ऑफ कॉस्ट कैसे हमें कॉस्ट का इवैल्यूएशन करना चाहिए और उसका बेनिफिट उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ों के में पड़ता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट पॉल सैमुएल्सन इज टेलिंग अस द एंड ऑफ चूजिंग अप, the choices that we do, allocations of the
scarce resources rather than that the evaluation of cost and benefit of doing so। ये सारी चीजों के बारे में पॉल सैमुएल्सन बहुत ही डिटेल में बताते। ओवरऑल अगर हम चारों डेफिनेशन की बात करते तो चारों डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन की जो बिहेवियर है इकोनॉमिक्स वो उसी के बारे में पढ़ता है और वो एकदम पॉजिटिव वे में उसको देखता है, जबकि हमें नेचर साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट करने पड़ते हैं इस ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, इसीलिए इसको सोशल साइंस बोला जाता है। तो यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ लायंस रॉबिन एंड second it is Paul Samuelson। So now let us move on with the economic activity and non-economic activity। I'm going to read it out, listen it out carefully। Most human beings perform several activities during a day। They meet friends, spend time in shop, engage in political discussion, watch televisions and films and do much more। But all activities are not the subject matter of economics। Economics studies only economic activity। Hence, it is important to understand the meaning of economic activity। So, आपको पता है most human being क्या करते हैं, बहुत सारे several activities करते हैं। आज के दिन आपने कितने सारे काम किए होंगे, ठीक है। So, एक particular day में human being बहुत सारे activity करते हैं, जैसे वो friends को मिलते हैं, shopping करने में time spend करते हैं, political discussion करते हैं, TV देखते हैं, films देखते हैं या बहुत सारी activities करते हैं। बट ये सारी एक्टिविटीज जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज माना नहीं जाता है। तो इकोनॉमिक स्टडीज में सिर्फ और सिर्फ हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में ही जानेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले ये जाने कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या। हम ऑलरेडी पूरा हाफ चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 1.5 पेज यही डिस्कस किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट पर्टिकुलरली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है उसका मीनिंग अभी दिया गया। सो लेट अस रीड दैट एंड अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी: activity performed with the purpose of getting economic benefit in the form of income involving exchange of goods, services and or factors as well as involving cost is called economic activity। Important aspects about economic activity pertains to purpose of making economic gains, satisfaction of somewhat and involvement of exchange and cost। एक्टिविटी जो भी इस पर्पस से किया जाता हो कि उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो, यानी पैसे की बेनिफिट हो, जो इनकम के रूप में आ सकता है या कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो सकता है, जैसे मैंने किसी की मदद की उसके बदले उन्होंने मुझे कोई चीज़ दिया तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो सकता है, या मुझे कोई सर्विस मिले। तो ये सारी फैक्टर्स जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो यानी पैसे इन्वॉल्व हो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंटली हमें ये समझना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा इसी पर्पस से किया जाता है कि वहाँ इकोनॉमिक गेन हो। गेन यानी पैसे के लेवल में कोई हमें गेन मिलता हो या पैसे के रूप में कोई गेन मिलता हो। फॉर एग्जांपल मैंने किसी की हेल्प की, उन्होंने मुझे मैंने हेल्प करने के बदले उन्होंने मुझे 2 किलो कैरी दे दी, बट वो कैरी अगर मैं खरीदने जाती तो मुझे वो 200 में गिरता, अभी वो मुझे फ्री में गिरा यानी वहाँ पे मेरा पैसे का थोड़ा बेनिफिट हुआ। तो इस तरीके से कोई ना कोई पैसे का इंक्लूमेंट होना यानी इन्वॉल्वमेंट हुआ कोई बेनिफिट होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन ऑफ सम वांट, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, अगर कोई मुझे बोलता है जैसे हम घर पे ये करते हैं ना कि मैं ये काम करके दूंगा उसके बदले मुझे वो चाहिए, तो उसके बदले जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले, इसका मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। तो हमें जो चीज़ चाहिए उसका सेटिस्फेक्शन मिले वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। या इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज एंड कॉस्ट, जैसे हम बोलते हैं कि मैं तुझे ये दूंगा उसके बदले मुझे वो दे दे, तो इस तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, या मैं वो करके दूंगा मुझे इतने पैसे दे दे, या कॉस्ट हो सकता है। इस तरीके से पैसे की इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वहाँ होना चाहिए। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी: ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, सेटिस्फाइंग नीड बाय incurring expense, watching a movie in a theater, incur expense to get entertainment, work in one's farm to extend labor and get output, get employed in a school to teach, provide service and get a salary। यहाँ 4 एग्जाम्पल दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। सबसे पहला, आप हर बार कभी ना कभी तो रेस्टोरेंट पे खाने गए होंगे। सो इफ़ यू आर गोइंग एंड ईटिंग इन रेस्टोरेंट, क्या वो फ्री में पड़ता है? नो,
we have to pay money. So if you are eating in a restaurant and paying a money, इसका मतलब वहाँ पे आपने satisfied होने के लिए पैसे खर्च किया, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी माना गया। अगर आप मूवी देखने गए थिएटर में, क्यों गए? क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट होना है, स्ट्रेस कम करना है, तो फ्री में तो मूवी देखा नहीं होगा थिएटर में, पैसे खर्च किए होंगे, तो वो भी तुम्हारा एक टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, क्योंकि वहाँ पे आपने पैसे दिए हैं। अगर हम दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया आपको, आपका खुद का खेत है, यानी एग्रीकल्चर लैंड, आप उसमें फार्मिंग करते हो, अगर आप कोई एम्प्लॉय रख के करते हो तो उसको आपको पगार देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा 2000 3000, उसके बदले आप खुद ही उसमें काम करते हो, तो उससे क्या होगा, आपको प्रोडक्शन भी मिलेगा और आपका पैसे भी बच जाएंगे, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। क्यों? क्योंकि आप पैसे कमाने भी वाले और आपने पैसे बचाया भी। नेक्स्ट, आपका टीचिंग में कहीं स्कूल में जॉब लगा एज ए टीचर, आप वहां जॉब करते हो और आपको सैलरी मिलता है, आप सर्विस प्रोवाइड करके सैलरी लेते हो, इसका मतलब ये भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। तो इन शॉर्ट, आप कहीं पैसा खर्च करते हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप कहीं पैसा लेते हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप कहीं पैसा बचाते हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा। सो लेट अस रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। थस ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आर प्लेंटी। Activity for fulfillment of a requirement through a transaction which involves cost and benefit on both sides is called an economic activity. Farmers, lawyers, teachers, actors and government all perform economic activity. आपको पता है इंसानों की रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है बट ज़्यादा भी होता है, ठीक है, प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए, हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है जिसमें ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि हमें कभी खर्चा करना पड़ता है तो कभी हमें पैसे कमाना भी पड़ता है। तो खर्चा करना और बेनिफिट यानी पैसे कमाना, दोनों को ही इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। फार्मर, लॉयर, टीचर, एक्टर, गवर्नमेंट के इंसान, पॉलिटिशियन, हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, क्योंकि हर कोई पैसे कमाता है और हर कोई पैसा खर्च करता है। So let us read the next paragraph. The following chain of activity is another example to clarify the meaning of economic activity. A farmer needs a motorcycle. In order to earn income to pay for the motorcycle, she works in her farm and sells the output for money. The seller of the motorcycle, who earns money by selling the motorcycle, spends it to fulfill some other wants. तो यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल भी दिया गया जिससे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी का चेन समझ में आएगा, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्लैरिटी मिलेगा। एक फार्मर है, उस फार्मर को मोटरसाइकिल लेना है यानी गाड़ी लेना है, तो वो क्या करेगा, खेतीबाड़ी करेगा, प्रोडक्शन करेगा, खेत में सारी चीज़ों को उगाएगा, फिर उसको बेचेगा, बेच के पैसे में उसको कमाएगा, जो चीज़ें बेचेगा उसके लिए पैसे लेगा, उस पैसे को वो मोटरसाइकिल में लगा के मोटरसाइकिल खरीदेगा। अब जो इंसान मोटरसाइकिल बेच रहा है वो क्या करेगा, मोटरसाइकिल को बेचेगा, उसका पैसे लेगा और उस पैसे से उसकी जो नीड है वो फिल करने की कोशिश करेगा। यानी हर इंसान यहाँ पे एक ना एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा रहता है। ये हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो नाउ लेट अस सी द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Activity which is performed without the specific purpose of obtaining economic gains is called non-economic activity. It does not involve exchange of benefit on both sides of the transaction. For example, charitable activities or activities which are done out of the love, affection, compassion, etc. These activities involves cost, but these costs are not incurred to get monetary economic benefit in exchange. ऊपर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने क्या देखा, हमें अगर कोई चीज़ चाहिए हम उधर पैसे देते हैं, फिर उस चीज़ को लेते हैं और यूज़ करते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, इसका मतलब हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और सामने वाले को पैसे मिलता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में दोनों साइड बेनिफिट होता है। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई पर्पस के साथ नहीं किया जाता, यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होता है, यहाँ पे एक्सचेंज तो होता है बट वन साइड एक्सचेंज देखा जाता है, दोनों साइड में कोई बेनिफिट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये एक्टिविटी क्यों करते हैं, ये एक्टिविटी हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें सामने वाले के ऊपर प्यार है, अफेक्शन है, कंपेंशन है, ये सारी चीज़ें, यानी हम एक तरीके से उस इंसान के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि हम ये मान लेते हैं हमारे फादर है, ठीक है, जब भी सैलरी लाते हैं हमारे लिए चॉकलेट लाते हैं, तो क्या वो हमें चॉकलेट दे के पैसे लेते हैं? नहीं, बट वो जहाँ से पैसे चॉकलेट लाते हैं वहाँ वो पैसे देते हैं, यानी फादर ने पैसे दे के चॉकलेट खरीदा
वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही चॉकलेट वो खुद खाने के बदले हमें प्यार से जब देते हैं और हम अपना सेटिस्फेक्शन करते हैं तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुमने पैसे दे के चॉकलेट खरीदा बट तुमने नहीं खाया, तुमने तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू लव देम, यू हैव गुड फीलिंग्स फॉर देम। तो इस तरीके से जब हम बिना बेनिफिट के, हम फ्रेंड को इसलिए चॉकलेट खिलाते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे, नो, हमें प्यार है, हम खा रहे हैं तो हम उसे शेयर कर लेते हैं। इस तरीके से बिना कोई मतलब के, बिना कोई बेनिफिट के जब हम किसी के लिए कोई चीज़ करते तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। जैसे मॉम हमारे लिए खाना बनाते, दैट इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम उसके लिए पे नहीं करते हैं ना। अदर देन दैट, दादी हमारे लिए कुछ अच्छा स्नैक्स बना के देते, उसके लिए हम पे नहीं करते, वो हमारी केयर करते, उसके लिए हम पे नहीं करते। तो इसी तरीके से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में चैरिटेबल, जैसे कि हम दान धर्म करते, जैसे अभी कोविड में कितने ही लोगों ने चैरिटी किया। सोनू सूद का कितना एग्जाम्पल आ रहा है, इज डूइंग सो मच चैरिटी, वो पैसे दे रहा है लोगों को, ये कर रहा, तो उससे क्या उसको पैसे मिल रहे हैं? नहीं, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो काफ़ी बार चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। यानी जब हम बिना कोई बेनिफिट के कोई भी एक्टिविटी करते बट उसमें पैसा खर्च हो रहा है बट उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। तो आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट revision of the portion that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the remaining two definition of the economic, which was given by the remaining two economists, Robbins Lyon and the Paul Samuelson. So according to Robbins Lyon, we have seen that he is considering the economic as a social science, but where he is considering that we have to see it as a normative science, but it is not a normative science. Why? Because here he is saying that economics only deals how the people are behaving in the scarcity, but it is not telling us how ideally they must deal up. So in this manner he is giving a wide concept on the economics. After that we have seen the Paul Samuelson. He is also talking of the choices, ending up on the choices. Rather than that, due to that scarcity, what are the problem that we are facing? So the benefit of the norms and the normative signs are being seen up. So overall we can say that after seeing the all four definition, we can see it in a very clear manner that all the definitions are telling the economic as a positive science which is dealing up the human's behavior as a social science. So according to all the four economists, it is a social science which is dealing up with the human's behavior in a very detailed manner. After that we have seen the non-economic activity and economic activity in a very detailed manner. What is economic activity? Any activity that is done with the purpose of getting money or exchange of any goods or services or any gain or benefit is considered as economic activity. For example, doing an work and getting any benefit for that, that is economic activity. But what is non-economic activity? Non-economic activity means the activity which is done without any beneficial purpose, only one-handedly it is done for the satisfaction, is considered as the non-economic activity. For example, we have seen fathers, mothers and friends loves that we share with each other with the things without considering any benefit or return back benefit from them is considered as non-economic activity. While in economic activity, both the sides there is a benefit. One is doing the economic activity for self-satisfaction and one is earning money. In this manner, both the portions are having the benefit. I have given you a very short revision of the today's portion because already I know it is a lengthy one, so I am trying to get it in a very less manner. On the next video we will see a brief revision of the today's topic, and I hope you all have understood the today's topic in a very well manner. Rather than that, I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope that you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.